Why do you have men and women taking part separately? In Olympics, for the 100 meters dash, why don't the men and women run together? Why separate for men and separate for women? Why? They do have equal rights everywhere. लेकिन मर्दों को एक दर्जा डिसीजन मेकिंग के हवाले से, घर के कवाम के हवाले से ज़रूर दिया गया because there can't possibly be two drivers of the same car. If you think it's patriarchal, then perhaps you can invent a car with two steering wheels. That will work for you. ईरानी शरिया कवानीन के तहत विरासत में अपने भाइयों के मुकाबले में औरतों का हिस्सा आधा होता है। विरासत के मामले में औरत को मर्द के मुकाबले में कम हिस्सा मिलता है। For example, Muslim scholars agree that 11 cases where a woman inherits the same amount as a man. In about 14 cases, she inherits more than a man. In 5 cases, she inherits and a man does not. And only in 4 cases will a woman inherit less than a man. So it depends, it's contextual, it depends on the certain circumstances. Who is the bread earner of the family? मर्द। औरत की शादी से पहले भी उसका बाप मर्द और औरत की शादी के बाद भी उसके खर्चे उठाने वाला, बच्चों पर खर्च करने वाला और पूरे घर का ख्याल रखने वाला वो भी मर्द। So at the end of the day औरत को एक्चुअली मर्द से भी ज़्यादा हिस्सा मिलता है और औरत का जो हिस्सा होता है वो उसका फुल टाइम पर्सनल होता है। She is not obliged to spend on anyone from that money. और वो इस तरह से कि इस्लाम ने औरत से स्पेंडिंग के हवाले से कुछ भी डिमांड नहीं किया। औरत अपने हिस्से को, अपने पैसे को जब, जहां और जैसे चाहे लगा सकती है और कोई भी मर्द, हत्ता कि उसका हस्बैंड भी उससे उसके पैसे या हिस्सा फोर्सफुली डिमांड नहीं कर सकता। जबकि एक मर्द को ज़्यादा हिस्सा मिलने के साथ ही इस्लाम ने मुख्तलिफ जगहों पर खर्च करने का भी उसको हुक्म दिया है, उस पर फ़र्ज़ करार दे दिया है, जिसमें अगर वो कोताही करे तो वो गुनाहगार होता है। बल्कि हस्बैंड पर भी ये फ़र्ज़ होता है टू गिव हर एडिशनल मनी एवरी मंथ। जी हाँ, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग ऑन एनीवन। और एक और बड़े मज़े की बात कि ना ही हस्बैंड वाइफ से उसके पैसे डिमांड कर सकता है। दिस इज इस्लाम माई फ्रेंड, एंड टेल यू व्हाट, द लिबरल वर्ल्ड विल नेवर टेल यू दीज फैक्ट्स अबाउट इस्लाम। She says, ever since in high school, I wanted to prove to men that I can beat them. So when I graduated high school and college, I opened up my salon. We do very well. I've made millions of dollars. My people and my work that work at the salon, they do very well for themselves. I drive a nice car, I have a nice house, I have money, I have millions. I don't worry about any of that stuff. You know what decision I made last night? I said, what's that? She says, I want a husband. I no longer want to compete with men. I need them. And I'm like, what? She's saying this in front of 2,000 people with her sister sitting right next to her. And now she's getting emotional. How many 65-year-old women do we have to hear saying that I bought into the fact that men are the enemy? I've never been married. I'm alone and I'm miserable and I wish I would have never bought into that philosophy. अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर ठोकर खाकर वापस आकर कहते हैं कि जी अच्छा ये काम ठीक नहीं था, हम इसको इस तरह कर लेते हैं। जबकि हम अपने ईमान के तौर ये बात कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे बेहतर जानते हैं, हमें ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। जब पहले से हमारे पास रहनुमाई मौजूद है तो हम उसकी रोशनी में अपने लिए राह का तयन कर लें। अगर एक औरत मुल्क छोड़ना चाहे तो उसे अपने वालिद या शौहर से इजाज़त लेनी पड़ती है। और रही बात ट्रैवलिंग विदाउट महरम की, तो कौन चाहेगा कि अपने हाथों अपने ख़ानदान को आग में झोंका जाए। Everybody is concerned with the security and safety of their family. And this has been the problem throughout the generations. Women are indeed physically weaker than men. You don't like it, your problem. Go fight with the science. Men are the protectors of women. अगर आपको लगता है कि मर्द और औरत बराबर होते हैं हर लिहाज से, why do they have separate MMA fighting matches? Why are you subjugating the women? Why don't you let the women and men run together? Has any media ever objected to the Olympics? Why? So stop. Thanks. अदालत में एक औरत की बात मर्द के मुकाबले में आधा वजन रखती है, यानी एक मर्द गवाह 2 खवातीन गवाहों के बराबर होता है। और हमारा लास्ट पॉइंट, टेस्टिमनी, वन ऑफ द अदर बिग इश्यूज विच आर drawn out of proportion to cause confusion. मुनाफिकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि आपको हमेशा लोग यही बताते मिलेंगे कि औरतों की गवाही मर्दों के मुकाबले में आधी है, जबकि हकीकत तो ये है कि कुछ जगहों पर मर्दों की गवाही औरतों से ज़्यादा है, कुछ जगहों पर मर्दों और औरतों की गवाही बराबर है और कुछ जगहों पर तो औरतों की गवाही मर्दों से भी ज़्यादा है। हत्ता कि अगर 100 मर्द भी उसके मुकाबले में आ जाएं तो तब भी गवाही उस एक अकेली औरत की ही मानी जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वुमेन कम्स फॉरवर्ड एंड टेस्टिफाइज कि उसने फलां बच्चे को दूध पिलाया है, तो इस एक औरत की गवाही हर मर्द पर भारी होगी और इसके मुकाबले में किसी की भी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। बट गेस व्हाट? Nobody is going to tell you about this precedence given to women in Islam. To give a wrong impression of Islamic teachings, again, you would often see people only mentioning this particular point ताकि आपको ये बताया जा सके कि इस्लाम ने ख़वातीन के राइट्स नहीं दिए। कि इसने बदकारी की है, तो इस्लाम क्या कहता है? एक मर्द आए और कहे कि जी ठीक है इसने ये ऐसा काम किया और मैं गवाही देता हूँ, तो कबूल है। 3 बंदे आकर एक बात को बयान करें और चौथा उसमें थोड़ी सी मुखालफत कर दे, तब भी गवाही कबूल नहीं है। तो इस्लाम तो कुछ मौके पे एक मर्द छोड़ 2, 3, 4 एक्सप्लिसिट गवाहों को तलब करता है। तो ये बात सिर्फ तस्वीर का फिर वही एक रुख है कि जी ख़वातीन को की गवाही आदी है मर्द के मुकाबले में। क्यों है? उसकी हिकमतें। Only when somebody would want to create a doubt and confusion in innocent minds, they would bring up the testimony issue. तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं एंड आई नो दे वुड स्टिल बी पीपल आउट देयर जो कि ये कहेंगे कि फ़लानी बात जो है वो इस वीडियो में नहीं बताएगी और फ़लाना क्वेश्चन जो है अगर उसका भी जवाब दिया जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता, एंड दिस पार्ट वाज मिसिंग बेसिकली। इट्स ट्रू, इन बातों की बहुत ज़्यादा डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि सब बातें बताई नहीं जाती। नज़र तो नहीं लगती, लेकिन आप लोग कब किताब उठाएंगे और रिसर्च करेंगे? स्टार्ट ओनिंग योर रियल आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम, क्योंकि अगर आज आप अपने दीन को नहीं जानेंगे तो देयर वुड बी पीपल ऑलरेडी आउट देयर हु वांट टू कंफ्यूज यू विद अ लॉट ऑफ डाउट्स। सो किसी का इंतज़ार मत कीजिए और स्टार्ट डूइंग योर ओन रिसर्च एंड लर्न योर दीन। दैट्स द वे टू गो।